Hello, my dear students. Welcome to the social science class. Today we are going to take another chapter from geography, and the chapter is Life in the Deserts. Children, you have studied in the chapter water that water means life to plants, animals and people. We all know that it is very difficult for anyone to live without water. Be it plant or animal or we the people, we need water for our survival, and it is very difficult to survive in such places where there is no water to drink. जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर survive करना it is very difficult, because without water we will not have any agriculture, we will not have any vegetation there, we will not have any grass for where the cattle can feed on, we will not get water to drink. So it will be very difficult for plants as well as animals and as well as people to live at such places where there is scarcity or where there is no water. But there are places in the world where there is extreme scarcity of water and where there are extreme harsh temperatures. The people have learned to live at such places जहाँ पर बहुत ज़्यादा harsh temperatures होते हैं और जहाँ पर पानी की बहुत अत्यधिक कमी होती है, extreme shortage होती है water की. In some places there is so much high temperature that they are very hot like fire. They are as hot as fire, and some places are so cold as ice. कुछ places तो इतने गर्म होते हैं जैसे वहाँ पर आग निकल रही हो, और कुछ places ठंडे places होते हैं जैसे जहाँ पर हमेशा या most of the time बर्फ़ जमी हुई होती है. These are called the desert areas of the world. Where there are extreme harsh temperatures, such places are called desert areas of the world, and we are going to study about these deserts in this chapter. क्या खासियत होती है? The characteristics of these desert places is that they are characterized by very low rainfall, scanty vegetation and extreme temperatures. These are the characteristics of desert areas. जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, scanty vegetation होती है, मतलब vegetation बहुत कम होती है और temperatures बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है? So depending on the temperatures, there can be two types of deserts, hot deserts और cold deserts. दो तरह के deserts होते हैं जहाँ पर बहुत extreme temperature high होगा, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर आग निकलती है, आग बरस रही हो ऐसा लगता है, तो वो कैसे deserts होंगे? There will be hot deserts, and the places where there is extreme low temperatures, जहाँ पर बहुत ठंड होती है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर बर्फ़ जमी होती है, वो कहलाते हैं कोल्ड डेजर्ट्स. ठीक है? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन हॉट डेजर्ट, दैट इज़ सहारा इन दिस चैप्टर, एंड वन कोल्ड डेजर्ट, दैट इज़ लद्दाख in this chapter. So first we are taking the hot desert. Did you understand the concept of desert? Desert word जब भी आता है तो हमको ये लगता है कि desert means sand, lots of, क्या picture हमारे दिमाग में आती है? What do you think when you hear the word desert? तो तुम्हें याद आता है कि बहुत sand dunes, बहुत दूर दूर तक ज़मीन पर रेत ही रेत है, ऐसे दृश्य ध्यान में आते हैं, राइट? बट डेजर्ट आर नॉट ओनली सैंडी डेजर्ट्स, देयर कैन बी डेजर्ट्स वेयर देयर इज़ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, वेयर देयर इज़ लॉट्स ऑफ आइस. ठीक है? उसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं. सो डेजर्ट की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? सी हियर इट इज़ गिवन, इट इज़ एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज़ स्कैर्स वेजिटेशन. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ डेजर्ट. एरिड रीजन मतलब a region where the agriculture is difficult, the soil cover is very less and it is very difficult to grow crops there. तो वहाँ पर बहुत हाई और लो टेम्परेचर्स हो सकते हैं और वेजिटेशन बहुत कम होती है. क्लियर? इतना तो समझ में आ गया सबको. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम दिस चैप्टर इज द हॉट डेजर्ट सहारा. फॉर दिस लेट्स फर्स्ट सी द map of the African continent.
See, this is the map of Africa, and the pink portion that is being colored pink is the Sahara Desert. So you can see that most of the part of North Africa is covered with the desert area, and that is the area of Sahara Desert. नॉर्थ अफ्रीका का बहुत सारा पोर्शन सहारा डेजर्ट के अंदर आता है, एंड यू कैन यू इमेजिन द एरिया ऑफ दिस डेजर्ट इज अराउंड 8.54 million square kilometers. Yes, you heard it right. It is 8.54 million square kilometers. Do you remember the area of India? It is about 3.2 million square kilometers. So you can understand the area of Sahara Desert is about 3 times more than the area of India. हमारा इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उससे 3 गुना, लगभग 3 गुना ज़्यादा है सहारा डेजर्ट, राइट? एंड इट कवर्स 11 countries. 11 countries come in Sahara Desert. See, here are the names of the countries given. These are the 11 countries that come in Sahara Desert: Somali, Sudan, Egypt, Eritrea, Chad, Niger, Mali, Algeria, Libya, Mauritania, then Western Sahara. These are the countries which come in Sahara Desert. So it covers about 11 countries. ठीक है? So here we come to this page again. See, the area of Sahara, it is the world's largest desert and it covers a large part of North Africa. North Africa का एक बहुत बड़ा part ये cover करता है, and its area is 8.54 million square kilometers, and India has an area of 3.2 million square kilometer. By this you can compare the area of the Sahara Desert. Sahara Desert touches 11 countries. These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia, and Western Sahara. Right? These are the 11 countries that are touched by Sahara Desert. Now, Sahara Desert does not only contain the stretches of sands. केवल यहाँ पर रेत ही रेत नहीं है. It is also covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface in Sahara Desert. Sahara Desert में gravel plains भी हैं, मतलब जो ग्रेवल वाली जो सॉइल होती है, ग्रेवल जो मोटी और दानेदार सॉइल होती है, उसके प्लेन्स विच आर वेरी हार्ड. ग्रेवल इज़ वेरी हार्ड, इस तरह के प्लेन्स हैं. एंड इट ऑल्सो हैज़ एलिवेटेड प्लेट्यूज, जिसमें जो कि बेयर रॉकी सरफेस है, क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन तो होती ही नहीं है. तो जो प्लेट्यूज हैं, जो रॉक्स हैं, वहाँ पर कोई पेड़ पौधा कुछ भी ग्रीनरी नहीं है. देयर आर बेयर रॉकी सरफेस, एंड दीज रॉकी सरफेसेस कैन बी मोर देन 25 मीटर हाई इन एट सम प्लेसेस. कुछ जगहों पर इनकी हाइट 2500 मीटर से भी ज़्यादा है. Did you understand? Now when we are studying Sahara Desert, so we should also understand this thing that once Sahara used to be a lush green plain. सहारा जो आज डेज़र्ट है, बहुत हॉट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट है, वो वहाँ पर कभी बहुत लश ग्रीन प्लेन्स हुआ करते थे. और इसके एविडेंसेस क्या हैं? दैट देयर आर केव पेंटिंग्स इन सहारा डेज़र्ट विच शो दैट देयर यूज्ड टू बी रिवर्स विद क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिचेस, शीप, कैटल एंड गोट्स. ये सभी एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लश ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे, प्लेन्स हुआ करते थे. बट बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्लाइमेट इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ बेयर सैंडी रीजन. बहुत सूखा सैंडी रीजन बन गया है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. और यहाँ पर साइंटिस्ट को फ़िश के स्केलेटन्स भी मिले हैं. द फॉसिल्स आप पढ़ते हैं ना फॉसिल्स के बारे में, तो दे हैव फाउंड द स्केलेटन्स ऑफ फिश ऑल्सो इन सहारा डेजर्ट, विच इज़ अ क्लियर एविडेंस दैट वंस इट वॉज फुल ऑफ वाटर. यहाँ पर बहुत पानी था, एक्वेटिक एनिमल्स हुआ करते थे, रिवर्स थे यहाँ पर, और बहुत सारा ग्रीनरी थी जिसमें कि एनिमल्स भी पाए जाते थे. But now, because of the climatic changes, because of the change in climate, it has turned into a
desert. So now we'll study the climate of Sahara Desert. The climate of the Sahara Desert is scorching hot and parched dry. बहुत hot और dry weather होता है यहाँ पर, and it has a short rainy season. The sky is cloudless and clear. Here the moisture evaporates faster than it accumulates. मतलब पानी की बूंद टपकती नहीं है, उसके पहले ही वो सूख जाती है. इतना गर्म यहाँ पर गर्मी होती है, इतनी स्कॉचिंग हीट होती है दैट द मॉइस्चर इवोपरेट फास्टर दैन इट एक्यूमुलेट्स. डेज आर अनबिलीवेबली हॉट. टेम्परेचर्स जो हैं वो दे मे बी एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस. आ रहा है समझ में? द डेज आर very hot and the temperature may soar as high as 50 degree Celsius, heating up the sand and bare rocks. जो इतनी गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, जो सैंड होती है और जो रॉक्स होती है वो हीट अप हो जाती है एंड देन दे रेडिएट द हीट. वो उस हीट को रेडिएट करती है, मतलब वो उसको बाहर निकालती हैं एंड दिस मेक्स एवरीथिंग अराउंड सहारा डेजर्ट वेरी हॉट. बट द नाइट्स आर बिटरली कोल्ड. यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड होता है विथ टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द लाइफ वुड बी सो डिफ़िकल्ट हेयर बिकॉज इट हैज़ वेरी हॉट डेज एंड फ्रीजिंग कोल्ड नाइट्स. यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी वाले दिन और बहुत ठंडी रातें होती हैं. द टेम्परेचर्स एट नाइट में रीच अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि दिन में 50 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से सैंड और बेयर रॉक्स हीट अप हो जाते हैं और हीट रेडिएट करते हैं. वो टेम्परेचर रात को 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है. ठीक है. नाउ वी कम टू फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना मीन्स वहाँ पर वेजिटेशन और एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं. तो वेजिटेशन तो बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है, एज वी हैव स्टडीड दिस इज़ वेरी लो वेजिटेशन एरिया. बट जो भी मिलता है वहाँ पे वो क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. इट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम्स एंड एकेशिया. दीज आर द ट्रीज विच कैन सर्वाइव very harsh temperatures and also they can survive in very low amount of water. Therefore these trees are found here, cactus, date palms and acacia. In some places there are oases, green islands with date palms surrounding them. ठीक है. ओएसिस, अभी आई विल डिस्क्राइब यू अबाउट ओएसिस. तो ओएसिस के चारों तरफ बहुत ग्रीनरी होती है, डेट पाम्स वहाँ पर उगते हैं. और फौना कौन कौन सा पाया जाता है वहाँ पे, दैट मीन्स एनिमल्स, कैमल्स, हाइनास, जैकॉल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस एंड मैनी वेराइटीज ऑफ snakes and lizards are the prominent animal species living there. You know that in deserts many kinds of reptiles are found. तो many kinds of scorpions, snakes, lizards ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं. इसके अलावा कैमल्स, हाइनास, जैकॉल्स, फॉक्सेस ये सभी भी यहाँ पर पाए जाते हैं. नाउ वी शुड स्टडी अबाउट ओएसिस. ओएसिस क्या होता है एक्चुअली में? ओएसिस क्या होता है, द प्लेस इन द डेजर्ट एरियाज वेयर वाटर इज़ फाउंड. जहाँ पर पानी मिलता है ऐसे एरियाज़ को ओएसिस कहते हैं. ठीक है. सी इन डेजर्ट एरियाज डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड. डिप्रेशंस मतलब एक तरह का गड्ढा या एक तरफ का लो लाइंग एरिया जो कि नॉर्मल लेवल्ड लैंड से नीचे होता है. ठीक है. एंड दीज डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स. जब हवा से सैंड उड़कर चली जाती है तब वहाँ पर डिप्रेशंस फॉर्म हो जाते हैं. एंड सम डिप्रेशंस at some depressions the underground water reaches the surface. कई जगहों पर क्योंकि अंडरग्राउंड जहाँ पर पानी है वो कई बार डिप्रेशंस में सरफेस पर आ जाता है. एंड दिस इज़ हाउ ओएसिस आर फॉर्म्ड. एक तरह का तालाब या एक तरह का बड़ा पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर और इस जगह को ओएसिस कहते हैं. बिकॉज हेयर these lands are fertile and the people can settle around these ओएसिस. पीपल जो हैं वो यहाँ के आसपास सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं, डेट पाम्स उगाते हैं. समटाइम्स द ओएसिस में भी एबनॉर्मली लार्ज, बहुत बड़े बड़े ओएसिस भी होते हैं. दिस इज़ योर गूगल होमवर्क कि आप लोग सर्च करना कि हाउ ओएसिस आर फॉर्म्ड और यू कैन सिंपली सर्च कि पिक्स ऑफ ओएसिस. तो ओएसिस की बहुत सारी पिक्स आपको देखने को मिलेगी और यू विल अंडरस्टैंड दैट these oases are the places in the desert where life exists, or we can say where the people want to settle, because everybody want to settle around the source of water. क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें पानी से पूरी होती हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं वहाँ पर, दूसरी लाइफ की सर्वाइवल हो सकती है. तो therefore the people settle around these water areas and these
like this Tafila-Let oasis in Morocco is a large oasis with an area of about 13,000 स्क्वायर किलोमीटर. तो इतने बड़े बड़े ओएसिस भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि एक सिटी, पूरी सिटी बस जाए जिसके चारों तरफ, इतने बड़े ओएसिस भी हो सकते हैं, ठीक है. तो ओएसिस क्या जगह है जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है और वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है. दिस इज़ हाउ ओएसिस आर फॉर्म्ड. Now we will study about the people living in the Sahara Desert. लोग कैसे होते हैं और कैसी लाइफ है उनकी, उसके बारे में हम जानते हैं. सहारा डेजर्ट में बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल इनहैबिट, सहारा डेजर्ट को इनहैबिट करते हैं. डिस्पाइट ऑफ इट्स हार्श क्लाइमेट, मैनी ग्रुप्स ऑफ पीपल इनहैबिट सहारा डेजर्ट, ठीक है, और वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं यहाँ पे. एंड अमंग देम द फेमस आर बेडोइंस एंड ट्यूआरेग्स. ये वहाँ की ट्राइब्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं. नोमैडिक ट्राइब्स मीन्स जो कि बंजारे होते हैं, दे विच डू नॉट लिव एट वन प्लेस एंड दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. तो बेडोइंस और ट्यूआरेग्स ट्राइब्स जो हैं, दीज आर द nomadic tribes which are engaged in the activities like rearing of animals like goats, sheep, camels, horses. इन animals को ये लोग rear करते हैं और ये animals इनके source of living हैं, because these animals they provide them with milk, they provide them with hides, जिससे कि वो लेदर बनाते हैं और उस लेदर से बेल्ट्स, स्लीपर्स और वाटर बॉटल्स बनते हैं. हेयर इज़ यूज फॉर मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स. उनके जो बाल होते हैं वो मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो बेडोइंस और ट्यूआरेग नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो कि एनिमल रियरिंग करती हैं, लाइक गोट्स, क्योंकि खेती तो होती नहीं ना बेटा, सारा डेजर्ट में देयर एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल. देयरफॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, द ट्राइबल पीपल हैं, दे आर एंगेज्ड इन animal rearing like goats, sheep, camels and horses. They are the animals which are reared by these tribes, and these animals provide them with milk, hides by which they make leather, and this leather is used for making belts, slippers, water bottles, etc. And the hair of the animals is used for making mats, carpets, clothes and blankets. The people living in Sahara Desert, they wear heavy robes. ठीक है, रोब्स यानी हैवी, एक पूरे फुल कपड़े पहनते हैं जो कि उनको डस्ट स्टॉर्म्स और हॉट विंड से बचाता है. आपने देखा होगा जो अरब कंट्रीज़ में जो शेख वगैरह होते हैं वो कैसे ऊपर से नीचे तक पूरा एक वाइट कलर का पूरा क्लॉथ पहने रहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ रोब, ठीक है, लबादा कह सकते हैं जिसको, कि हिंदी में उसे लबादा कहते हैं. दैट दे वियर हैवी रोब्स, जिससे उनको डस्ट स्टॉर्म से और हॉट विंड से बचाव होता है. दे ऑलवेज वियर अ हेड गियर, वो ऊपर सिर पर कपड़े से ज़रूर ढकते हैं, बिकॉज द सन इज़ सो द हीट ऑफ द सन इज़ सो इंटेंस देयर कि अगर वो हेड कवर नहीं करेंगे तो उनको हीट स्ट्रोक हो जाएगा. देयरफॉर दे ऑलवेज कीप देयर हेड्स कवर्ड, राइट. द ओएसिस इन द सहारा एंड नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन. जो ओएसिस हैं सहारा डेजर्ट में और नाइल वैली के आसपास इजिप्ट में, वो सेटल्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, मतलब वहाँ पर आसपास सेटल्ड पॉपुलेशन रहती है. दैट मीन्स वो नोमैडिक नहीं है. ऊपर हमने मेडोइंस और ट्यूआरेग्स जो पढ़े हैं, दे आर नोमैडिक ट्राइब्स, बट ओएसिस के चारों तरफ सेटल्ड पॉपुलेशन रहती है क्योंकि वहाँ पर पानी अवेलेबल है. तो पीपल ग्रो क्रॉप सच एज राइस, वीट, बार्ली एंड बेन्स, एंड ऑल्सो डेट पाम्स भी उगाते हैं लोग. सिमिलरली इजिप्शियन कॉटन विच इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड इज़ ग्रोन इन इजिप्ट. इजिप्ट के जो ओएसिस के आसपास लोग रहते हैं वो इजिप्शियन कॉटन भी ग्रो करते हैं. दिस इज़ अ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. Now the discovery of oil. Oil is a major product which is being found in Sahara Desert, and it's constantly transforming the life of the people in Sahara Desert. Oil क्या है? Oil it's a product which is in great demand throughout the world. पूरी दुनिया में oil की डिमांड बहुत ज़्यादा है, because oil is the most essential fuel required for the vehicles. तो यहाँ पर अल्जीरिया, लिबिया एंड इजिप्ट में जब से तेल डिस्कवर हुआ है, तेल की खदानें डिस्कवर हुई हैं, तब से सहारा डेजर्ट में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी भी धीरे धीरे बदल रही है. ठीक है, बिकॉज ऑयल इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और उसको बेचकर बहुत
इकोनॉमी ग्रो करती है, कंट्री जो है वो डेवलप होती है। तो अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट जो है वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी ऑफ ऑयल। Other minerals which are found in Sahara Desert are iron, phosphorus, manganese and uranium. ये मिनरल्स भी सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बोला कि ऑयल की डिस्कवरी के बाद उनकी जो सहारा डेजर्ट में रहने वाले लोग जो कि बहुत प्रिमिटिव लाइफ पहले जीते थे, ट्राइबल लाइफ जीते थे, अब उनकी लाइफ बहुत चेंज होती जा रही है। जो मॉस्क हैं उनकी जगह अब ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स ने ले ली हैं, बड़े बड़े टावर्स हैं जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, ग्लीमिंग ग्लास बिल्डिंग्स हैं। देयर आर सुपर हाईवेज विच क्रिस क्रॉस द एंशियंट कैमल पाथ्स। जो पहले क्या होता था, कैमल पे लोग चलते थे, कैमल पाथ्स बने हुए थे, अब उनकी जगह सुपर हाईवेज आ गए हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए अब कैमल्स की जगह ट्रक्स का यूज़ होने लगा है। ट्यूआरेग्स विच आर अ ट्राइब इन सहारा, दे आर एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। They have become guide to foreign tourists. More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding job in coal, oil and gas corporations. Corporations होना चाहिए, operations ओके, इट्स गुड कि बहुत सारे लोग जो हैं जो कि नोमैडिक ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, अब वो शहरों में आकर जॉब्स लेने लगे हैं इन ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशंस। वहाँ पर उनको काम मिलता है जिससे कि वो पैसे अर्न करते हैं और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं। सो दिस इज़ हाउ द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ बाय द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट product and which is in great demand throughout the world. So this is about the life of people living in Sahara Desert. I hope ये सहारा डेजर्ट की डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। वेयर इज़ सहारा डेजर्ट, वेयर इज़ इट सिचुएटेड, व्हाट इज़ द क्लाइमेट, व्हाट इज़ द फ्लोरा एंड फौना, व्हाट इज़ ओएसिस एंड हाउ द पीपल इन सहारा डेजर्ट लिव. This is the point, these are the points which we have to cover in this video. So this video is now complete. We will discuss about Ladakh, the cold desert, in the next video. Bye bye.